Welcome to Vyas IAS. My name is Satyam Pandey and we are going to cover labor welfare and social security. As you all know that Vyas IAS has launched EPFO, AO and EO batch 2025. In this batch we are going to cover special and specific sections which we usually don't study through our preparation of UPSC or state PSC. So sections like computer application, and different other sections like industrial relations and labor laws, accountancy, all these things we usually don't cover in our UPSC preparation or state PCS preparation. So most of the aspirants are those aspirants who are simultaneously preparing for the UPSC exam. They are preparing for the EPFO exam as well. So there are some important sections in this exam which are very crucial to be covered. So here we will see that sections like accountancy, from which 10 questions come, industrial relations and labor laws, this from this area 15 questions are asked, computer application 11 questions are asked, similarly in social security 8 questions are asked. So this section constitutes a very important section of our exam. So I am here to cover this section of social security and labor welfare. This section is very important because 8 questions are game changer. Eight questions can make you in the exam or can make out you from the exam. So without wasting any time, let's see what all we are going to see in these lectures of social security. uh, so as you all know that labor welfare and social security is a broader concept, and many things and many aspects are taken care in this part. Firstly, starting with the definition, and before that, I would like to tell you through these lectures, we are not only going to take the lectures only, we will be covering PYQs and different other, we will be taking your doubts and we will be providing you all the help that you need in this batch. So let's start with our lecture. Let's start with the definition of labor welfare. So labor welfare basically होता क्या है, that we need to understand. Labor welfare refers to the efforts to improve the well-being of workers. So जैसे ही बात आती है labor welfare की, तो यहाँ पर किसकी बात हो रही है? This we are talking about a community. We are talking about a community or a population which is working in difficult situations, or in factories, or you see that people working in industries which are writing the growth story of our country, but their efforts and their hard work should be recognized. To recognize their hard work, we need to provide them with their extra social security. So in social security many things are constituted like health security, safety, their increase in their wages, and like education, like skill development. All this constitutes under the social security of laborers. So laborers working in industries and in factories, they are the most vulnerable sections in the society. If you see, as we all know that people working in coal industries, mining industries, and different other industries like glass industries, so in this industry they are hazardous, and as well as they are very much uh, problematic and difficult situations created under those circumstances. So we will see कि लेबर वेलफेयर बेसिकली किस तरीके से इनका वेलफेयर जरूरी है और उन पे किस तरीके से ध्यान देने की जरूरत है, यही हमको समझना है. इनकी डेफिनेशन क्या है, इनके कॉन्सेप्ट पूरा समझना पड़ेगा हमको, और किस तरीके से हम इनको कैटेगराइज करते हैं, क्या क्या चीज़ों को इसमें ध्यान दिया जाता है. दिस ऑल वी नीड्स टू अंडरस्टैंड, एंड दिस आई एम गोइंग टू टेल यू इन दिस लेक्चर. सो यहाँ पर क्या हो रहा है कि किस चीज़ के इम्प्रूवमेंट की बात हो रही है, वेलबींग ऑफ वर्कर्स बियॉन्ड वेजेस. की भाई एक एम्प्लॉयर है, वो किसी एम्प्लॉय को हायर करता है या किसी लेबर को हायर कर रहा है, सो ही इज प्रोवाइडिंग दैट पर्सन सर्टेन वेजेस. कि सपोज कि दिन का 100 रुपीज उसको दे रहा है. सो प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं है कि 100 रुपीज उसको दिन के मिल रहे हैं, सो दिस इज हिज इनकम, बट क्या ये 100 रुपीज उसकी लाइफ को फुलफिल कर रहे हैं? क्या उसकी सारी डिमांड्स, बेसिक नीड्स, फैमिली की नीड्स, क्या वो इन 100 रुपीज से पूरा कर पा रहा है? सो इन मोस्ट ऑफ द केसेस यू विल सी कि वो जो अमाउंट उनको दिया जाता है दैट इज नॉट इनफ कि वो अपनी फैमिली की, अपनी पर्सनल रिक्वायरमेंट्स, अपनी जो चिल्ड्रंस की रिक्वायरमेंट्स हैं वो सब फुलफिल कर पाए. दैट इज वाई वी नीड समथिंग एक्स्ट्रा, वी नीड समथिंग एक्स्ट्रा एफर्ट्स.
वी नीड टू इम्प्रूव देयर वेलबींग, कि इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं जो वो अपनी इनकम के थ्रू कवर नहीं कर सकते हैं। वहीं पर रोल आ जाता है लेबर वेलफेयर का, वहीं पर ही रोल आ जाता है सोशल सिक्योरिटी का। सो यहाँ पर अगर आप देखो कि अगर उनको जो वेजेस मिल रहे हैं, लाइक अगर हम 500 की भी बात कर लें यहाँ पर, अगर सपोज आज की डेट में अगर 500 भी किसी को पर डे के मिल रहे हैं, सो विल ही बी एबल टू फुलफिल द नीड्स ऑफ हिज फैमिली? क्या वो अपनी फैमिली की नीड्स को पूरा कर पाएगा, अपने चिल्ड्रंस को एजुकेशन प्रॉपरली दिला पाएगा, अपनी हेल्थ नीड्स को? अगर वो बीमार होता है तो क्या वो किसी हॉस्पिटल में जाके प्रॉपर ट्रीटमेंट ले पाएगा उतने रुपए में? क्या सेफ्टी नेट्स हैं उसके पास? कौन सी चीजें ऐसी हैं जो उसको दी गई हैं या वो अपने पैसे से अरेंज कर सकता है? तो दिस बी हैव रिकॉग्नाइज्ड कि जो उनको पैसा मिलता है वो उन चीजों से फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं अपनी नीड्स। दैट इज वाई दिस कॉन्सेप्ट कम हेयर कि लेबर वेलफेयर की नीड्स है यहाँ पर, हमें बहुत सारी चीजों को ध्यान देने की जरूरत है। तो फिर इंटरवीन कौन करता है? गवर्नमेंट यहाँ पर। सो गवर्नमेंट का इंटरवेंशन होता है, तो गवर्नमेंट यहाँ पर क्या प्रोवाइड करती है? सोशल सिक्योरिटी। सो इट कैन बी सीन एज ए फिजिकल कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पर किसकी बात आ जाती है? फिजिकल कॉन्सेप्ट की। अब फिजिकल कॉन्सेप्ट में क्या होगा कि बेसिक नीड्स की बात हो रही है, किसी पर्सन को कि फूड मिल जाए, उसको रहने के लिए खाना हो, घर हो, और बॉडी पे कपड़े होने चाहिए। सो दीज आर द बेसिक नीड्स ऑफ अ ह्यूमन बीइंग टू सर्वाइव ऑन बेयर मिनिमम रिसोर्सेज। तो बेयर मिनिमम क्या चाहिए किसी को? खाना, कपड़ा और मकान, ये तीन चीजें चाहिए। सो ये तो हो गया फिजिकल कॉन्सेप्ट। तो इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं विच कॉन्स्टिट्यूट्स अंडर द सोशल कॉन्सेप्ट। अब सोशल कॉन्सेप्ट में अगर आप देखो कि अगर क्या किसी को खाना देना इज इनफ, मोर देन इनफ? क्या उससे उसका पेट भर जाएगा? क्या उससे समाज में उसकी डिग्निटी मेंटेन हो जाएगी? क्या वो समाज में इक्वलिटी के साथ जी पाएगा वहां पर विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन? क्या वहां पर फेयरनेस होगी उसके साथ, इक्विटी उसके साथ फॉलो की जाएगी क्या वहां पर? या उसके साथ सोशल जस्टिस होगा उस तरीके से कि उसके साथ कोई भी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन ना हो, उसके साथ किसी भी तरीके से रिच एंड पुअर डिवाइड के वाला डिस्क्रिमिनेशन उसके साथ ना हो, उसके साथ दूसरे जो डिस्क्रिमिनेशन हो सकते हैं वो उसके साथ ना हो? क्या वो सोशल कॉन्सेप्ट में अपने आप को एक सोशल स्टेटस मेंटेन कर पाएगा, अपना इकोनॉमिक स्टेटस मेंटेन कर पाएगा? सो ये सारी चीजें आ जाती हैं हमारे सोशल कॉन्सेप्ट में। और फिजिकल कॉन्सेप्ट में हम क्या ध्यान देते हैं? बेसिक नीड्स को। सो ये अपने को समझना होगा कि फूड, शेल्टर एंड बेसिक नीड्स लाइक जो सैनिटेशन वगैरह हो गया या ड्रिंकिंग वाटर हो गया, दीज ऑल आर द बेसिक नीड्स। तो ये हमें प्रोवाइड करनी है। इट कम्स अंडर द फिजिकल कॉन्सेप्ट कि किसी की क्या रिक्वायरमेंट है जीने के लिए, दैट इज फिजिकल कॉन्सेप्ट। लेकिन समाज में अपनी स्थिति को सही रखने के लिए क्या जरूरी है? दैट कम्स अंडर द सोशल कॉन्सेप्ट, कि समाज में भी तो उसकी एक स्थिति है, समाज का भी वो पार्ट है। उस समाज में बहुत सारी चीजें होती हैं, लाइक कल्चर होता है, सोशल वैल्यूज होती हैं, मोरल्स होते हैं, वहाँ का सोशल स्टेटस होता है, कुछ इकोनॉमिक स्टेटस होता है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होता है। इट ऑल कम्स अंडर द सोशल कॉन्सेप्ट। सो ये अपने को समझना पड़ेगा। जब हम इसको समझेंगे तभी हम इस पूरे जो हमारा टॉपिक है, जो हमारा पर्पज है यहाँ पर, वो फुलफिल हो पाएगा। सो अब हम देखते हैं कि वेलफेयर इज ए टोटल कॉन्सेप्ट। अभी तक मैंने क्या बोला कि इट कैन बी सीन एज ए फिजिकल कॉन्सेप्ट, इट कैन बी सीन एज ए सोशल कॉन्सेप्ट, लेकिन अब मैं कह रहा हूं कि इट इज ए टोटल कॉन्सेप्ट। इट इज नॉट अ कॉन्सेप्ट इन आइसोलेशन। ये केवल बात नहीं है कि कह दी गई है कि वेलफेयर की जरूरत है, कुछ चीजों को पकड़ा दिया गया, ऐसा नहीं है। जब हम बात करते हैं वेलफेयर की तो वहां पर आ जाता है टोटल कॉन्सेप्ट, वहां पर सब कुछ होता है, लाइक इकोनॉमिक नीड्स को फुलफिल किया जाना चाहिए, सोशल, वहां पर मोरल, इवन सोशल जस्टिस की भी बात होगी। सोशल सिक्योरिटी से ही सोशल जस्टिस मिलेगी। किसी की इकोनॉमिक स्थिति बेहतर होगी तो उसकी सोशल स्थिति, सोशल कंडीशन भी उसकी अच्छी होगी, है ना? तो सोशल स्टेटस की बात होगी यहाँ पर मोरल फैक्टर्स की बात होगी, लाइक ह्यूमन डिग्निटी है क्या? क्या लेबर्स जो रह रहे हैं जिस सोसाइटी में, आर दे एंजॉइंग द प्रॉपर डिग्निटी जो एक इंडिविजुअल को चाहिए? क्या वो क्या डिजर्व करते हैं जो और लोगों को मिल रहा है? क्या वो भी वही फील कर पा रहे हैं सोसाइटी में? क्या उनको फेयर वेजेस मिल रहे हैं वहां पर? क्या सेफगार्ड्स उनको प्रोवाइड किए गए हैं प्रॉपरली? तो ये अपने को ध्यान देना पड़ेगा, है ना? तब टोटल कॉन्सेप्ट की बात आती है तो जैसे ही हम इकोनॉमिक की बात करेंगे तो अगर हम एग्जांपल देखें तो मनरेगा है। तो एमजी नरेगा क्या प्रोवाइड कर रहा है यहाँ पर? डिग्निटी मेंटेन करने की बात कर रहा है यहाँ पर, एक तरीके से क्या यहाँ पर लाइवलीहुड प्रोवाइड कर रहा है, किस तरीके से? जो 100 डेज गारंटीड वर्क अनस्किल्ड वर्कर को प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उससे उनको क्या है कि एक बेसिक बेयर मिनिमम इकोनॉमिक जो नीड्स हैं वो पूरी होंगी, उससे उनकी जो सोशल नीड्स हैं वो भी पूरी होंगी, कहीं ना कहीं पर वो सोशल अपनी कंडीशन जो है उनको बेहतर कर पाएंगे, है ना? सो अगर हम इन सबको जोड़ दें, अगर हम टोटल कॉन्सेप्ट में देखें, सो क्या ये नहीं आता है अपना राइट टू आर्टिकल नंबर 21
जहां पर बात हुई है राइट टू लाइफ विद डिग्निटी की बात हो रही है यहाँ पर, है ना। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इस चीज को प्रोवाइड कर रहा है। तो जैसे ही इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इस चीज को प्रोवाइड कर रहा है, वैसे ही किसका इंटरवेंशन यहाँ पर आ जाता है, गवर्नमेंट। यहाँ पर रोल किसका आ जाता है, गवर्नमेंट का। और फिर गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बनती है कि वो बेसिक नीड्स को, सोशल नीड्स को, इकोनॉमिक नीड्स को और यहाँ पर डिग्निटी को, सब कुछ को मेंटेन कर पाए और लोगों को प्रोवाइड कर पाए। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर ऑफ लेबर्स। तो हम यहाँ पर किसको पढ़ रहे हैं, लेबर्स के बारे में। तो ये अपने को अच्छे से समझना होगा। देन कम्स द रिलेटिव कॉन्सेप्ट की ये केवल इतनी ही बात नहीं है कि टोटल कॉन्सेप्ट में हमने इकोनॉमिक चीजें देख ली, मोरल फैक्टर, सोशल, ये सब इतनी ही बात नहीं है। इसमें रिलेटिव कॉन्सेप्ट भी है कि वेलफेयर की जो नीड्स है ना, वो ऐसा नहीं है कि एक बार आपने किसी को 1 लाख रुपया प्रोवाइड कर दिया और उसके बाद उसको कुछ भी चीज की जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं है। समय बदलेगा तो डिमांड भी बदलेगी, लाइक विद टाइम। अगर मान लो किसी जगह पर इंडस्ट्रीज लगा दी जाए तो उस एरिया का सपोज जो ड्रिंकिंग वाटर था वो अब काफी पॉल्यूटेड हो गया है। तो अब वहां की जरूरत क्या है, टाइम चेंज हुआ है, वहां पर जो चीजें थी वो उस तरीके की, जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज थी वो चेंज हुई हैं, अब फैक्ट्रीज आ गई हैं और उसकी वजह से ड्रिंकिंग वाटर पॉल्यूटेड हुआ है। तो टाइम के हिसाब से नीड क्या है, वहां पर नीड है सेफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर की। सो वेलफेयर की नीड्स जो है ना वो टाइम टू टाइम चेंज होती हैं। यहाँ पर हो सकता है अब जैसे कई बीमारी हैं लाइक कोविड-19, एक बहुत ही रैंडम, बहुत ही सडन एक आउटब्रेक हुआ, एपिडेमिक, एक पैंडेमिक का। सो ये पैंडेमिक जो है वो नीड्स को चेंज कर रहा है विद टाइम। कि यहाँ पर नीड क्या है कि चाहे कितना भी गरीब हो, चाहे वो एक लेबर ही क्यों ना हो, बट उसको वैक्सीन प्रोवाइड हो। जो एक रिच अफोर्ड कर पा रहा है वो एक गरीब भी अफोर्ड कर पाए यहाँ पर, है ना। तो टाइम के हिसाब से वेलफेयर नीड्स क्या है, चेंज होती हैं। एज के साथ वेलफेयर नीड्स क्या होती हैं, चेंज होती हैं। जैसे जैसे मान लो कोई एक लेबर है, तो सपोज कोई लेबर्स हैं जो वर्क कर रहे हैं किसी फैक्ट्री में। सो उन एज के हिसाब से उनकी नीड्स चेंज होंगी। अगर वो सपोज सिंगल पर्सन है, उसकी अभी तक शादी नहीं हुई है, मैरिटल स्टेटस अभी सिंगल है, तो वहां पर उसकी नीड्स कुछ कम होंगी। वहां पर वो अपनी डिमांड्स को फुलफिल कर रहा होगा या अपने माँ बाप की डिमांड्स को फुलफिल करेगा। बट एज टाइम चेंजेस और ही कम्स इनटू अ फैमिली, तो वहां पर टाइम के साथ, एज के साथ उसकी डिमांड्स क्या होंगी, प्रॉपरली चेंज हो जाएंगी। वहां पर उसकी फैमिली रिक्वायरमेंट्स, उसको एक फैमिली सिक्योरिटी चाहिए होगी, सोशल सिक्योरिटी वहां पर चाहिए होगी, जहां पर उसकी फैमिली यानी कि उसकी वाइफ है वो सिक्योर हो, आने वाले चिल्ड्रन हो, वो जो उनके बेबीज होंगे वो सिक्योर्ड हो। फिर अगर और टाइम चेंज होगा तो उनकी एजुकेशन का ख्याल कौन रखेगा, मैटरनिटी बेनिफिट्स का ख्याल कौन रखेगा, ठीक है, पेरेंटल लीव का ख्याल कौन रखेगा। तो इस तरीके से ये एक रिलेटिव कॉन्सेप्ट है। जैसे जैसे सिचुएशंस बदलती हैं, टाइम बदलता है, एज बदलती है, कल्चर बदलता है या सोशल वैल्यूज बदलती हैं, तो ये जो हमारा कॉन्सेप्ट है जो लेबर वेलफेयर का या सोशल सिक्योरिटी का, ये भी चेंज होता है। तो अगर हम कल्चर में बात करें तो कल्चर जैसे जैसे बदलेगा तो किसी कल्चर की कुछ रिक्वायरमेंट है, किसी कल्चर में आप देखोगे कोई रिलीजियस कल्चर होगा तो वहां पर रिक्वायरमेंट्स कुछ अलग होंगी। कोई कल्चर है सेक्युलर कल्चर होगा कहीं पर, तो वहाँ की रिक्वायरमेंट्स अलग होंगी। सोशल वैल्यूज में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। अब सोशल वैल्यूज में आप कई बार देखोगे लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है या प्रॉपर सोशल वैल्यूज हम इनकलकेट नहीं कर पा रहे हैं कुछ सर्टेन पॉपुलेशन में। तो उन सारी चीजों का हमें ध्यान रखना पड़ता है जब हम बात करते हैं वेलफेयर की। तो वेलफेयर एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है और लेबर वेलफेयर का एक चैलेंजिंग कॉन्सेप्ट है, जिसमें हमें बहुत सारे एस्पेक्ट को, बहुत सारी चीजों को ध्यान में रखना पड़ता है। लेट्स सी कि इसके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, कि भाई क्यों इसकी जरूरत है, क्या क्या इसके एम्स हैं, कि हम क्या अचीव करना चाहते हैं और कैसे करेंगे। तो ये सारी चीजें क्या आ जाती हैं कि हमारा क्या पर्पस है, क्यों हम ये सब प्रोवाइड करना चाहते हैं। सो टोटल डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स पर्सनैलिटी ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स। तो जो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे वर्कर्स की पर्सनैलिटी का जो टोटल डेवलपमेंट है वो हो सके, ये होता है हमारा एम। कि भाई उनका भी डेवलपमेंट हो सके, जो एजुकेशन को प्रॉपरली गेन नहीं कर पाए हैं, अनस्किल्ड हैं, तो उनको प्रॉपरली स्किल मिल पाए। अगर उनके पास प्रॉपर हेल्थ के लिए प्रॉपर पैसे नहीं है तो उनको इंश्योरेंस मिल पाए, है ना। फैमिली की जो नीड्स है उनको पूरा कर पाए। सो ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं अगर आप इनको ध्यान से देखें, कि सोशल कंफर्ट प्रोवाइड करना, कि लाइक सोसाइटी में अगर बाकी के लोग पीसफुली रह पा रहे हैं, वो अपनी फैमिली की जो बेसिक नीड्स हैं उनको पूरा कर पा रहे हैं, तो यहाँ पर जो लेबर्स हैं, पीपल विच आर वर्किंग इन डिफिकल्ट सिचुएशंस, तो उनको भी वो सोशल कंफर्ट हो कि वो भी अपनी फैमिली की बेसिक नीड्स को पूरा कर सकें। फाइनेंशियल सपोर्ट लाइक थ्रू स्कीम्स की, इंश्योरेंस स्कीम हो या श्रम पोर्टल अभी आपने देखा, या ऐसी बहुत सारी चीजें जो गवर्नमेंट लेकर आती रहती है, जहां पर हम अनस्किल्ड वर्कर को या फिर जो
वर्कर्स हैं उनको हम क्या करते हैं, फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं, एक मंथली इनकम। अगर आप स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में जाएं, नॉर्डिक कंट्रीज में, तो वहां पर आप देखोगे कि उनके वेजेस जो हैं वो भी हाई होते हैं। डिस्पैरिटी इन जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होता है वेजेस में, जो जेंडर पैरिटी होती है वो भी कम होती है वहां पर, अच्छे वेजेस मिलते हैं, प्लस गवर्नमेंट की तरफ से बहुत ज्यादा सपोर्ट होता है एज कम्पेयर टू द डेवलपिंग कंट्रीज। सो तो आप एग्जाम्पल्स में उनको देख सकते हैं। और क्या हो जाएगा हमारा, बेटर वर्किंग कंडीशन, वर्किंग कंडीशंस को हम अच्छा कर सकें, लाइक वहां पर जहां पर वर्कर्स काम कर रहे हैं वहां पर सैनिटेशन प्रॉपर हो, वहां पर ड्रिंकिंग वाटर प्रॉपर हो, वहां पर खाने की सुविधाएं हो, वहां पर कुछ रेस्ट रूम हो जहां पर वो थकने के बाद कुछ टाइम आराम कर सकें, कुछ लेजर टाइम में वो कुछ चीजों को एंजॉय भी कर सकें। दे आर ऑल्सो ह्यूमंस, दे हैव लाइफ। सो वो भी उन सारी चीजों का आनंद ले सकें जो बाकी के लोग ले रहे हैं। तो दैट इज द ऑब्जेक्टिव कि उनका एब्सेंटिज्म अगर हम रिड्यूस करना चाहते हैं। अब यहाँ पर देखो एब्सेंटिज्म की बात हो रही है कि अगर वो कम एब्सेंट हो, तो ये कम एब्सेंट कब होंगे, जब उनके पास हेल्थ मेजर्स प्रॉपरली होंगे, कि वो प्रॉपरली अफोर्ड कर पा रहे हैं कि अगर उनकी फैमिली में कोई बीमार हुआ है तो वो उनको प्रॉपर दवाई प्रोवाइड कर पा रहे हैं, या खुद बीमार हो जाते हैं ज्यादा काम करने की वजह से, तो वो अगर उनके पास प्रॉपर हेल्थ ट्रीटमेंट होगा, मेडिकल फैसिलिटीज होंगी, तो वो कम एब्सेंट होंगे। अगर उनको वेजेस अच्छे मिलेंगे या उनके पास अच्छा फाइनेंशियल सपोर्ट होगा, वर्किंग कंडीशंस अच्छी होंगी, तो दे विल बी मोटिवेटेड टू वर्क मोर। सो काम करने के प्रति उनका मोटिवेशन ज्यादा रहेगा, तो उससे क्या होगा कि रिड्यूस होगा क्या हमारा एब्सेंटिज्म, कम होगा एब्सेंट जो हमारा वर्क फोर्स होगा वो, है ना। टर्न अराउंड टाइम बढ़ेगा हमारा, कि ज्यादा काम करेंगे, ज्यादा जब एब्सेंट नहीं होंगे तो टर्न अराउंड टाइम बढ़ेगा, ज्यादा देर तक करेंगे काम। इंडस्ट्रियल रिलेशंस इंप्रूव होंगे, किन के बीच में, एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर दोनों के बीच में इंडस्ट्रियल रिलेशंस इंप्रूव होंगे। कि अगर आप कहीं पर काम करने जाओ, सपोज आप कॉर्पोरेट में काम करते हो और वहां पर आप कंपनी आपको आपके पहुंचते ही वहां पर आपके लिए अरेंजमेंट है कि आप ब्रेकफास्ट कर सकते हो, वहां पर आप कॉफी वगैरह ले सकते हो, वहां पर आप लेजर टाइम में थोड़ा बहुत देर रेस्ट कर सकते हो, रेस्ट रूम्स है वहां पर। तो इस तरीके की चीजें अगर वहां पर है प्रॉपरली, तो आप क्या कर सकते हो, अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हो ज्यादा बेटर तरीके से। सो ये अपने को समझना होगा, है ना। सो इस तरीके से हम इंडस्ट्रियल रिलेशंस को इम्प्रूव कर सकते हैं, प्रोडक्टिविटी को एनहेंस कर सकते हैं। प्रोडक्टिविटी इनहेंस कब होगी, जब हम स्किल डेवलप करेंगे प्रॉपरली, जब हम उनको हेल्थ मेजर्स प्रोवाइड करेंगे, जब हम उनको फाइनेंशियल सपोर्ट देंगे। सो प्रोडक्टिविटी बढ़ती है अगर हम उनको अच्छा न्यूट्रिशियस फूड प्रोवाइड करेंगे, तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। और अगर हम यही सारी चीजें कट कर देंगे तो आप देखोगे कि प्रोडक्टिविटी भी घटेगी, और हमारा पैसा भी एक्स्ट्रा खर्च हो जाएगा, और ज्यादा लेबर्स अरेंज करने में, तो कम लोगों में ही ज्यादा प्रोडक्टिव काम हो सकता है, एफिशिएंट तरीके से काम होगा। ठीक है, कम समय में ज्यादा काम हो रहा है, एफिशिएंसी अच्छी होगी। अगर हम उनको प्रॉपर रेस्ट करने देंगे, ज्यादा अच्छे से उनकी स्लीप साइकिल कंप्लीट होगी, अगर अगर वर्किंग कंडीशंस अच्छी होंगी, अगर सोशल कंफर्ट अच्छा होगा, फैमिली सिक्योर होगी, सो दे विल बी एफिशिएंट, उनके दिमाग में कम टेंशन होंगी, कम प्रॉब्लम्स होंगी, सो एफिशिएंसी अच्छी होगी वर्कर्स की क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी होगी। कि माइनिंग कर रहे हैं लेकिन माइनिंग में उनको क्या पूरे इक्विपमेंट्स प्रोवाइड किए गए हैं, जो रिक्वायरमेंट्स है उनको, लाइटिंग, उनकी सिटिंग कंडीशंस, या जो वहां पर फूड वगैरह है वो प्रॉपरली अरेंज किया गया है। सो वर्कर्स की क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसी है, दैट ऑल्सो मैटर्स। सो वो भी हमें समझना पड़ेगा। इम्प्रूव करनी है उनकी हेल्थ को, उनकी वर्किंग कंडीशंस को, ऑल दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स, सो दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड। अब सोशल स्कोप क्या है लेबर वेलफेयर का, अब यहाँ पर समझो दो कॉन्सेप्ट है, इंट्राम्यूरल एंड एक्स्ट्राम्यूरल। इंट्राम्यूरल में क्या है, लेबर वेलफेयर के स्कोप, कहाँ कहाँ पर लेबर के वेलफेयर की नीड है, दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड ना। सो इंट्राम्यूरल में अगर हम बात करें, सो विद इन द फैक्ट्री, तो बात हो रही है विद इन द फैक्ट्री की, जो वर्कर किसी फैक्ट्री में काम कर रहा है वहां पर उसके वेलफेयर के क्या क्या मेजर्स लिए गए हैं, दैट इज द इंट्राम्यूरल। और फैक्ट्री के बाहर उसको क्या क्या चीजें प्रोवाइड की गई हैं, बाय द एम्प्लॉयर, बाय द गवर्नमेंट, या बाय द किसी और कोई थर्ड ऑर्गेनाइजेशन बीच में आ जाती है उसके द्वारा, क्या उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड की गई, दैट इज द एक्स्ट्रा म्यूरल। सो इंट्राम्यूरल में हम देखेंगे कि ड्रिंकिंग फैसिलिटीज की क्लीन एंड सेफ ड्रिंकिंग वाटर मिले, दैट इज अ बेयर मिनिमम थिंग, जो कि अभी भी चैलेंज है कि नहीं मिलता है हर जगह पर। रेस्ट रूम्स होने चाहिए कि भाई 4 से 5 घंटे काम करने के बाद इंसान को आधा घंटा 1 घंटे का रेस्ट मिल जाए। कैंटीन फैसिलिटी होनी चाहिए कि भाई अगर वो अपने पैसे से कुछ खाना चाह रहा है तो भी वो अफोर्ड कर सके, प्लस उसके पास ये फैसिलिटी हो कि जो जहां पर काम कर रहा है फैक्ट्री, वहां से वहां की कैंटीन में वो चीजों को ले सके। सेफ्टी मेजर्स हो, लाइक इक्विपमेंट्स, लाइक ग्लव्स हो गए, हेलमेट्स हो गए, या फिर जैकेट्स हो गई, या जो भी चीजें रिक्वायरमेंट होती हैं, डिपेंड्स अपॉन द
काइंड ऑफ वर्क दे आर डूइंग। सो वहाँ पर जो सेफ्टी मेजर्स चाहिए लाइक फायर एक्सटिंग्विशर्स या फायर सेफ्टी हो गए या दूसरे जो भी सेफ्टी मेजर्स चाहिए वहाँ पर दे मस्ट बी देयर, ताकि उनकी लाइफ को थ्रेटनिंग कंडीशन से बचाया जा सके कि कहीं पर आग लग जाती है तो उनको निकाला जा सके प्रॉपरली, या फिर कहीं पर कोई हादसा हो जाता है, मशीन फेलियर हो जाते हैं, ब्रेक डाउन हो जाते हैं, सो वहां पर से उनको कम से कम जोखिम में डाल के उनको बचाया जा सके। एक्स्ट्रा म्यूरल्स में क्या आ जाता है, आउटसाइड दी फैक्ट्री की, ये तो फैक्ट्री के अंदर हमने उनको वेलफेयर प्रोवाइड किया, अंदर बाहर क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, सोशल सिक्योरिटी, कि उनके बच्चों को एजुकेशन मिल सके जो कम प्राइसेस हैं उनमें कम कॉस्ट में एजुकेशन मिल सके बच्चों को। उसके अलावा अगर मैटरनिटी लीव चाहिए या दूसरे बेनिफिट्स चाहिए या अपनी वाइफ को सिक्योर करना चाहते हैं, कुछ कुछ सेविंग्स चाहते हैं, सो दैट इज द काइंड ऑफ सोशल सिक्योरिटी वी नीड्स टू प्रोवाइड आउटसाइड द फैक्ट्री। एजुकेशन हो गया, ट्रांसपोर्टेशन की, भाई फैक्ट्री तक जाने और आने का जो रास्ता है उसको तय करने के लिए जो फैक्ट्रीज हैं दे आर प्रोवाइडिंग द ट्रांसपोर्टेशन। रिक्रिएशन की समटाइम्स उनको लीव दी जा रही है कि आप जाओ फैमिली के साथ एंजॉय करके आओ। सो दैट इज द काइंड ऑफ थिंग वी नीड्स टू टेक केयर इन दिस लेबर वेलफेयर। होलिस्टिक सोशल एंड रिलेटिव कॉन्सेप्ट है, जैसा कि मैंने बताया कि इसमें एक इट इज अ होलिस्टिक कॉन्सेप्ट, एक ब्रॉडर बड़ा कॉन्सेप्ट है, कॉम्प्रिहेंसिव है काफी। इसमें हमें फिजिकल मेंटल वेलबींग का ध्यान देना होगा, मोरल और इमोशनल वेलबींग का ध्यान भी देना होगा कि इमोशनल ब्रेकडाउन ना हो, काम करते करते ही इंसान टूट ना जाए कि वो आगे काम करने की उसकी हिम्मत ही ना हो, है ना। सोशल रिलेशनशिप विद द फैमिली खराब ना हो, कम्युनिटी के साथ खराब ना हो कि काम का प्रेशर इतना ज्यादा हो कि एक्स्ट्रा आवर्स में काम कर रहे हैं। वर्क ग्रुप्स जो हैं दे मस्ट बी गुड, उनके साथ में रिलेशन अच्छा होना चाहिए, जिनके बीच में काम कर रहे हैं, जिनके साथ में काम कर रहे हैं, जहां पर रह रहे हैं और जो उनकी फैमिली है, सो उनके साथ का जो रिलेशन है दैट शुड बी हेल्दी वन। रिलेटिव क्या है कि भाई जो मैंने बताया कि टाइम प्लेस और इंडिविजुअल नीड्स के हिसाब से जो वेलफेयर है वो चेंज होता रहता है। इट डिपेंड्स कि यूपी के लेबर्स की डिमांड कुछ और होगी, वेयर एज की पीपल वर्किंग ऑन द माउंटेन्स वहां पर जो काम कर रहे हैं उनकी डिमांड्स कुछ और होंगी। इसी तरीके से अगर कोई ऑयल एक्सप्लोरेशन का काम कर रहा है तो उनकी डिमांड्स कुछ और होंगी, है ना। सो वर्किंग एनवायरनमेंट की अगर हम बात करें, सो गुड वर्किंग एनवायरनमेंट चाहिए होता है, जहाँ पर मैंने अभी बताया था कि लाइक प्रॉपर लाइटनिंग चाहिए, वेंटिलेशन होना चाहिए, सैनिटेशन फैसिलिटी होनी चाहिए, सीटिंग बैठने की प्रॉपर सुविधा होनी चाहिए, साथ ही साथ जो क्लीन फैसिलिटीज होनी चाहिए, लाइक ड्रिंकिंग वाटर वहाँ पर प्रॉपरली होना चाहिए। सो दीज आर द बेसिक थिंग्स विच वी नीड्स टू प्रोवाइड टू अवर वर्कर्स। हेल्थ फैसिलिटीज में अगर आप देखो वहाँ पर रेगुलर चेकअप्स होने चाहिए कि हजार्डस फैक्ट्रीज में काम कर रहे हैं अंडर डिफिकल्ट सिचुएशंस की, वहाँ पर बहुत सारा गैस रिलीज होती हैं, कई सारी हार्मफुल गैसेस हो गई या फिर स्मोक हो गया। सो इस इन सारी चीज़ों के बीच में काम करने वाले वर्कर्स के रेगुलर चेकअप्स होने चाहिए। एम्बुलेंस सर्विसेज फॉर इमरजेंसी कंडीशंस के लिए एम्बुलेंस सर्विसेज होनी चाहिए। मेडिकल स्टाफ होना चाहिए अगर वहाँ पर कई सारे वर्कर्स काम कर रहे हैं। वहाँ पर फैमिली के लिए कुछ जो प्राइमरी एजुकेशन है, अगर मान लो कोई वर्कर्स हैं जो अपने घरों से दूर साल साल 2-2 साल तक काम कर रहे हैं, सो वो अपनी फैमिली को साथ में रख पाए, उनको भी वो एजुकेशन प्रोवाइड कर पाए अपने बच्चों को। सो उसका इंतजाम होना चाहिए प्रॉपर प्राइमरी एजुकेशन का। एंड काउंसलिंग होनी चाहिए वर्कर्स की, उनके फैमिली की, कि वो क्या कर सकते हैं, किन कामों के लिए वो फिट हैं, किन के लिए नहीं है। सो ये सारी चीज़ें हमें ध्यान देनी होंगी। जनरल वेलफेयर का हमें ध्यान देना पड़ेगा, लाइक हाउसिंग हो गया, ट्रांसपोर्टेशन, स्पोर्ट फैसिलिटीज। सो ये सारी चीजें हैं जो अभी भी बहुत काम इन पे बाकी है, फैमिली केयर करने की जरूरत है। एंटरटेनमेंट की, दे ऑल्सो नीड सम एंटरटेनमेंट, दे नीड एंजॉयमेंट। लाइक अभी आपने देखा होगा सिलकियारा टनल में कितने मजदूर फंस गए थे, उनको निकालने में कितनी मशक्कत करनी पड़ी थी। सो उनको केवल दे डू नॉट ओनली वांट टू वर्क, दे ऑल्सो नीड एंटरटेनमेंट, की कभी इंजॉयमेंट भी हो, फैमिली के साथ टाइम हो, फैमिली केयर हो, बच्चों के लिए अच्छी चीजें हो, इकोनॉमिक बेनिफिट्स हो उनके पास, लाइक सब्सिडी हो चीजों पर, सामान पर, और हेल्थ इंश्योरेंस उनका बहुत मस्ट होना चाहिए। सो ऑल दीज थिंग्स वी नीड टू टेक केयर इन लेबर वेलफेयर। सो this is how we are going to cover, we are going to not only study about social security, we will be covering here PYQs। अगर आप ध्यान से देखो हम आगे आने वाले लेक्चर्स में PYQs को कवर करेंगे, साथ ही हम इसमें कवर करने वाले हैं PYQs के साथ में। अगर आप देखोगे गवर्नमेंट स्कीम्स को, तो जितनी भी गवर्नमेंट की इंपॉर्टेंट स्कीम्स होंगी उन सबको यहाँ पर कवर करने वाले हैं हम लोग सोशल सिक्योरिटी में। सो जो 8 क्वेश्चन है ना, उनको हम लोग मैक्सिमम इनका बेनिफिट लेने की कोशिश करेंगे कि यहाँ से हमारे जो क्वेश्चंस हैं वो गलत ना हो, हमारी थ्योरी, हमारा जो कॉन्फिडेंस है थ्योरी का गवर्नमेंट स्कीम से और PYQ से बूस्ट हो और गलतियाँ कम से कम हो। ठीक है,
तो हम इन क्वेश्चंस को मैक्सिमम गेन करने की कोशिश करेंगे और इसी तरीके से हम पढ़ेंगे व्यास आईएएस पे। सो ये बहुत ही बिग, मैं कहूँगा कि बहुत ही अच्छा एफर्ट है व्यास आईएएस का कि आपके लिए ये बैच अरेंज किया है। सो आप लोग इसको ज्वाइन करो और अच्छे से यहाँ पर जो आपके इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं उनको कवर किया जाएगा। अगर आपकी कोई स्पेशल नीड्स हैं, कुछ आपकी डिमांड्स हैं या आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप शेयर कर सकते हो, तो उनको भी हम लोग टैकल करने की कोशिश करेंगे। सो थैंक यू सो मच। इस लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं, बाकी आगे जो हमारी थ्योरीज होंगी उन टॉपिक्स को हम और अच्छे से और डिटेल में पढ़ने की कोशिश करेंगे एंड वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि व्हाट ऑल we need to take care while studying about this EPFO exam. So thank you so much.